Chalo, let us begin with next new chapter, that is reproduction in flowering plants. Now, when we talk about reproduction, we know that there are two types of reproduction that we see within the organisms, which is what? Correct, sexual reproduction and asexual. What is the basic difference between sexual reproduction and asexual reproduction? Batao. What is the difference between asexual and sexual reproduction? You have gametes formation for what? Asexual or sexual? So here we require, there is gamete formation, whereas that is absent in asexual. What else? अरे ये तो आना चाहिए. You require single parent over here, whereas here we require two parents. Then here there would be fertilization process that takes place. Your fertilization is absent. Because there is fertilization of two different cells that takes place during sexual reproduction, this is also referred as amphimixis. क्योंकि यहाँ पे दो गैमीट्स या दो सेल्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं. एम्फी मतलब टू, मिक्सिस यानी फ्यूज होना या मिक्स होना. Amphimixis is where there is fusion of two gametes that takes place. Whereas over here, asexual reproduction, where there is no fertilization occurring, thus you also call it as apomixis. Apo means not, mixis means fusion. There is no fusion that occurs. Okay, what else? Correct. When we talk about sexual reproduction, because there are two parents involved, by default there are variations which are seen. So progeny will show us variations, whereas in asexual reproduction, the progeny generations will be identical. There are no variations in the progeny generation for asexual reproduction. What else? Sorry? So we would rather say zygote formation takes place over here. Whereas for asexual reproduction, there is no zygote formation. What else? What else? When we talk about asexual reproduction, this is slightly more quicker in nature, whereas this is very slow. This is quick as well as simple, whereas this is slow as well as complex in nature. Okay, these becomes basic difference between sexual and asexual reproduction. Apart from that, when we talk about asexual reproduction, there are different methods. Of asexual reproduction, whereas sexual reproduction, there are no methods. इसमें कोई वैरायटी ऑफ मेथड नहीं होता, एक ही मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, बस और कुछ नहीं. जबकि एसेक्सुअल का बात करें तो यू हैव फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन,
बडिंग एक्सेट्रा, काफी सारे अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकता है एसेक्सुअली, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ही मेथड से होता है बेटा, जहाँ पे मेल गैमेट इज गेटिंग फ्यूज्ड विद फीमेल, खत्म बात, ठीक है। Now all of this what we are having, that is asexual reproduction के बारे में details, is what we have in another chapter, which is reproduction in organism, which we will do it a little later because it is asexual reproduction. We directly go for the next, which is talking about sexual reproduction. When we talk about sexual reproduction in plants, what structure in plant is responsible for reproduction? Flowers. So flower becomes their reproductive growth producing organism. So the flower is the sexual organ, you can call it as, that is seen, within which you have multiple structures that are seen. Basics of morphology में already पढ़ चुके हैं, which is where it has a particular thalamus, plus it has a swollen shoot tips, ठीक है. On that swollen shoot tips you would have some structure which is called as calyx. On that calyx you will have petals that arises, right? This becomes thalamus, this becomes calyx, and this is what you call it as corolla. Calyx will have a simple unit which is called as sepals, and corolla has simple unit called as. On this particular thalamus we have a structure that arises which is male and female reproductive organs. So female reproductive organ will have stigma, style, and ovary. Somewhat like this. So this becomes stigma, this becomes style, whereas this becomes, and within ovary you also have some structure which is what? We call this particular structure to be as ovules, right? Now all these three together, that is stigma, style, and ovary together, will be called as gynoecium, which is composed of stigma, style, and ovary. बराबर बेटा? जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो यहां से it comes outside to form some structure like this. Wherein this what we see is called as anther, and this is classified to be as filament. Together we can call it to be as androecium. Androecium is ideally composed of three parts, which is anther, filament, and the region where anther and filament combine to each other या attach to each other, which is called as connective. You call it to be as connective. Last bench पे दिख रहा है what I'm writing? Yes or no? Now, getting into these structures one by one into detail, जब हम इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, उसके पहले एक फ्लो हमने प्लांटे में पढ़ा था फॉर एंजियोस्पर्म्स.
which is what are the different terminologies that are assigned to different structures of these reproductive organs. We'll revise those. I'm expecting that you all have revised and sat for the lecture, but then I trust you all that there are many of them who have not even revised, right, Maitre? Yeah, revised. Chal bata, what is microsporophyll? You have something called as microsporophyll. Microsporophyll meaning we are talking about a structure which is called as stamen. The stamen is called as microsporophyll, within which you have a structure called as microsporangium. Stamen will have something called as microsporangium, which is nothing but anther. Microsporangium, which is anther, would have something called as microsporangia, which is nothing but pollen sac. And this microsporangia would further have microspores present in them. Microspores would be nothing but pollen grains, which would obviously be haploid in nature. Okay, beta? Likewise, even females have similar terminologies where they will have megasporophyll, which will be nothing but carpel या फिर pistil. This megasporophyll will have megasporangium. Megasporangium is nothing but ovules. Within ovule, you would have megasporangia, which is basically nucellus. And within megasporangia, you will have megaspore, which is nothing but embryo sac. Are we clear? ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम प्लांटे के समय पे भी पढ़ चुके हैं, बट देन दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज अपने पास थी. इन स्ट्रक्चर्स को अब हमें डिटेल में देखना होगा कि ये कैसे दिखते हैं, क्या होता है इनके अंदर. तो गोइंग अहेड वेरी फर्स्टली विद रिगार्डिंग एंथर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एंथर, coming for basics of anther, it is classified to be a bilobed structure. Bilobed म्हणजे काय? यानी जो एंथर होते हैं उसके पास एक लोब्यूल होता है कुछ ऐसा, और उसी को अटैच एक और लोब्यूल होता है कुछ ऐसा. ठीक है, दो लोब्यूल होने की वजह से यू कॉल इट एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. इसके अलावा ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो रहता है वो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग में एनक्लोज्ड होता है. That is the reason you can also call it as diathecus. Call it as diathecus. Are we clear, beta? Anther is also called as microsporangium. You can call it as microsporangium. इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को जब तुम ऐसे कट करोगे, कट करके जब अंदर देखते हैं हम, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देता है. इज इट विजिबल फॉर लास्ट बेंच? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है अपने को, जिसमें दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब. इस लोब के अंदर एक पोलन सैक रहेगा, इस लोब के अंदर दूसरा पोलन सैक रहेगा.
Again over here you have one pollen sac, over here you have another pollen sac. Because there are two lobules, there are 4 pollen sac which are seen. अगर एक ही लोब्यूल होता है तो कितने पोलन सैक होते हैं? शॉर्ट है। 4 पोलन सैक होने की वजह से जो सैक होता है वो बेसिकली एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज लॉक्यूल्स। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स। तो कितने लॉक्यूल्स है इसके पास इस वक्त? 4। तो हम एंथर को टेट्रा लॉक्यूलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास 4 लॉक्यूल्स होते हैं, इस वजह से वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज टेट्रालॉक्यूलर स्ट्रक्चर। आसान बेटा। हर एक लॉक्यूल के अंदर स्पोर्स जनरेट होंगे विच विल बी नथिंग बट योर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि वो पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, बट उसके पहले ये पोलन ग्रेन्स को बनने के लिए और मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए विच इज प्रोवाइडेड बाय 4 walls that this anther has. Now the 4 walls that anther has starting from outside is called as epidermis, जो सबसे बाहर वाला लेयर है। Is it visible to the last bench? दक्ष तेरे को ही नहीं दिख रहा है, पीछे तीनों बेंच पे दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है। चश्मा का नंबर चेक करवा। You have epidermis, epidermis के अंदर you have endothecium, उसके अंदर you will have middle layer and उसके अंदर you will have tapetum। ये 4 प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं बेटा। जो एंकर होते हैं उनके पास 4 वॉल्स होते हैं। they have 4 walls out of which some walls, all 4 are responsible for protection but some of them are also responsible for providing nourishment। इंग्लिश बोला। चारों 4 वॉल्स जो है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन तो देते ही है, लेकिन उनमें से कुछ वॉल्स ऐसे भी है जो प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको नरिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, अब कौन सा वॉल क्या करता है ये अपने को डिटेल में समझना है। ठीक है, तो पहले इतना लिख ले फिर आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, फोकस बीच में ले ले खाली। ना व्हेन वी गो अहेड, जो एंथर के बारे में डिटेल पढ़ना है, पहले ये देख लेते कि एंथर बनता कैसे है। ठीक है, तो आइडियली प्लांट का जो टिप्स होते हैं, शूट के टिप्स, उसमें कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। वी नो व्हाट आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नाउ। सो यू हैव सम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स व्हिच गेट्स डिवाइडेड टू फॉर्म archaesporal cells and some forms epidermal cells. This archaesporal cells further get divided and differentiated into 2 types of cells. One is called as sporogenous cells and the other is called as parietal cells. Parietal cells जो होते हैं वो आगे फिर से डिफरेंशिएट हो जाते हैं to give rise to 3 types of walls या 3 types of tissues, which is nothing but epidermis जो था वो वैसे का वैसे नीचे आएगा, you have something called as endothecium, then you have middle layer, and then you have something called as tapetum. Do not pronounce it as tapetum, it is tapetum. ठीक है, because there are people who also pronounce it as tapetum but ideally you pronounce it as tapetum. ठीक है, तो ये 4 वॉल एंथर के कैसे बनते हैं वो हमने देखा, कहां से और कैसे बने। स्पोरोजेनस सेल्स जो होते हैं वो आगे डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके हमको बना के देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पोलन मदर सेल। यू कैन कॉल इट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और वी कैन कॉल इट एज पोलन मदर सेल, शॉर्ट में PMC। ठीक है,
पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल. This is obviously 2n in nature. It will undergo meiosis to produce 4n, that is haploid pollen grains. This happened with the help of what process beta? Meiosis. ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं आगे जाके माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके इट विल प्रोवाइड अस विथ 2 सेल्स. एक जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल और दूसरा जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल. Now, since pollen grain is haploid, you all use your brain and tell me ये दोनों cells कैसे पैदा होंगे, माइटोसिस से या मियोसिस से? Perfect. So by the process of mitosis, you have these 2 cells obtained. These 2 cells will be haploid or diploid. ठीक है बेटा. Now, जो पोलन ग्रेन होता है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है अपने, ठीक है. ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया वैसा ही सेम यहाँ पे भी होता है, बट 2 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते थे फिर मेरे को, इसलिए मैंने एक ही डायग्राम में दोनों बनाए हैं. ठीक है, तुम इमेजिन करो कि ये जेरोक्स है यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सबसे बाहर वाला एक वॉल है हमारे पास, दिस बिकम्स एपिडर्मिस. बरोबर बेटा. दिख रहा है लास्ट बेंच पे, यू कॉल इट एज एपिडर्मिस. ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स जिसका बेसिक रोल हो जाएगा प्रोटेक्शन. ठीक है बेटा. एपिडर्मिस होता है वो एक ही लेयर होता है सेल का, और वो पतले सेल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं, चपटे एकदम. ठीक है, और वो फ्लैट सेल पूरा बाहर की तरफ अपने को दिखाई देता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन. ठीक है, गोइंग स्लाइटली मोर अहेड, इसके अंदर एक और सेल्स का लेयर रहता है, उस सेल्स के लेयर को हम क्या कहेंगे? एंडोथीशियम. This particular layer that we see, again it is a single layer of cells. However, these are parenchymatic cells that we see. अब जब हम बोल रहे कि ये parenchyma cell है, obviously ये food store करेगा. ठीक है, इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, it tends to consist of कैलोस शुगर. इसके साइटोप्लाज्म के पास कैलोस नाम का एक शुगर होता है, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, वैसे यू हैव अ शुगर कॉल्ड एज कैलोस शुगर. दिस कैलोस शुगर के प्रेजेंस के वजह से एंडोथीशियम सेल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होता है, टू व्हाट यू कॉल इट एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर. इट टेंड्स टू गेन हायग्रोस्कोपिक नेचर. हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय? बताओ, बोलो. वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, इसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर. ठीक है बेटा. तो सीन क्या होता है, जब कभी भी ये पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स, अंदर के पोलन ग्रेन्स अभी तक बनाए नहीं हमने, इन पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. तो जब कभी भी पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं और अब उनको बाहर आना है, तो इस एंथर को टूटना पड़ेगा. बिना टूटे तो वो पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे नहीं, है ना. तो एंथर टूटेगा कैसे? स्टेप वाइज टूटता है. सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होते ही जो एंडोथीशियम सेल्स है वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक रीजन वाले एंडोथीशियम सेल्स जो है
वो सारे के सारे सेल्स विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे ही वो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, एंडोस्मोसिस होगा और सेल्स जो है वो फट जाते हैं। जैसे ही सेल्स फट जाते हैं, यहां का रीजन जो वो फट जाएगा। ठीक है, दिस रीजन दैट वी सी ओवर हियर, जहां से वो फट रहा है, इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस यानी टूट के खुलना। ठीक है, तो जिस रीजन में एंडोथेशियम सेल्स फट जाते हैं बाय एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ डेहिसेंस। आर वी क्लियर? जाऊया पुढे। एंडोथेशियम सेल्स, ओके, मैं ROD लिख रहा हूं, which is region of dehiscence. So after pollen maturation, cells of ROD, that is region of dehiscence, will swell and lyse, resulting in dehiscence of anther. Dehiscence of anther यानी anther का फटना। ठीक है बेटा, चले आगे। एंडोथेशियम सेल्स के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सेल का लेयर है, which is this layer. Can you see that? This is nothing but middle layer. The third layer that we have is middle layer. अब इस मिडल लेयर में क्या होता है? Is it visible? दिख रहा है ये कलर? मिडल लेयर में क्या होता है? मिडल लेयर सबसे पहले, अब तक जितने भी लेयर्स थे उन सब में एक ही लेयर था सेल्स का। मिडल लेयर में 2 से 3 लेयर होते हैं, 2 to 3 layers of parenchyma cells will be seen. Now since you have 2 to 3 layers of parenchyma cells, by default what will be the functional role? फूड स्टोरेज। अब वो फूड स्टोर कर रहा है तो इट टेंड्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? मिडल लैमेले। ठीक है, इसके अलावा एक बार ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, वंस द पोलन ग्रेन्स आर मैच्योर, अब क्या होता है, दोनों पोलन सैक के बीच का जो मिडल लेयर है, कैन यू सी दैट? ये मिडल लेयर पूरी तरह से ड्राई होके या पूरी तरह से मर जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है सेल्स। यहाँ के सेल्स टूट जाने के बाद दोनों पोलन ग्रेन जो फ्यूज हो जाएंगे कुछ ऐसे, और यहां से फट जाता है ताकि पोलन ग्रेन्स रीजन ऑफ डेहिसेंस से बाहर निकल सके। आई रिपीट, क्या हुआ बेटा? जैसे ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गया, दोनों पोलन सैक के बीच के जो मिडल लेयर है वो सारे सेल्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं या मर जाते हैं, ये पकड़ो, तो ये रीजन पूरा खाली हो जाता है। तो दोनों पोलन सैक जो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाने के बाद एक जगह से फट जाएगा पोलन सैक, जिस वजह से सारे पोलन ग्रेन से वो बाहर आ सकेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ डेहिसेंस। आर वी क्लियर? How pollen grains come outside of the anther is clear? Everyone? So the layer of middle layer between two pollen sac get degenerated after pollen maturation.
जिस वजह से पोलन ग्रेन से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट लेयर जो अपने को दिख रहा है, दिस सेल्स दैट वी सी, दिस सेल्यूलर लेयर दैट वी सी इज कॉल्ड एज टेप्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एंथर। बिना टेप्टम का कभी भी पोलन ग्रेन कुछ कर ही नहीं सकता था, बिकॉज पोलन ग्रेन का पूरा बॉडी, पूरा अस्तित्व जो है वो यही बना के देता है। पोलन ग्रेन के पास उसके खुद के न्यूक्लियस के अलावा कुछ खुद का नहीं है, सब टेप्टम का दान है, सब कुछ। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कैसे क्या वो चीज। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टेप्टम। दिस इज large cell with dense nucleus and cytoplasm. It is the primary source of nutrition. It provides nourishment to developing पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देने के साथ साथ उसके साइटोप्लाज्म में जो भी केमिकल्स है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी केमिकल्स रहेंगे विच इज केमिकल ऑफ पोलन, दैट इज कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेट्स से ग्लूकोज, कैलोज एक्सेट्रा, या फिर कोई प्रोटीन हो गया जो उनके अंदर रहेगा, एंजाइम वगैरह हो गया जो उनके अंदर रहेगा, सॉल्ट वगैरह जो भी उनके अंदर रहेगा एक्सेट्रा, वो सारा चीज जो है वो टेप्टम ही देता है। सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर का शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सॉल्ट, मिनरल्स, सारा सब कुछ टेप्टम उसको देता है। यहां तक कि उनके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बनाने के जो केमिकल्स रहेंगे वो भी यही देता है। ठीक है, सेल वॉल केमिकल्स ऑफ पोलन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय टेप्टम ओनली। अब ऑब्वियस है टेप्टम को खुद का भी ध्यान रखना है, पोलन ग्रेन का भी ध्यान रखना है, दो चीज का ध्यान रखना है, तो उसके अंदर केमिकल का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा ना भाई, यस और नो? केमिकल ज्यादा रहेगा उसके अंदर। अब केमिकल ज्यादा रहेगा, इस वजह से उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म डेंस अगर हो रहा है, इतना सारा केमिकल बना रहा है, तो न्यूक्लियस बाय डिफॉल्ट बड़ा रहेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के लिए ना काफी सारा कॉन्ट्रडिक्ट है। कुछ बुक्स बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इनका वो ट्रिप्लॉइड होता है, कुछ बोलते हैं इनके पास दो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि नया एनसीईआरटी हमको क्या बताने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या मार्क करना है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर द टू दैट वी हैव टू फ्लक्चुएट इन। दे हैव लार्ज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, वी वुड ऑलवेज कंसिडर इट हैज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड मतलब क्या वीर? सिद्धार्थ, ट्रिप्लॉइड मतलब 3 5। ट्रिप्लॉइड म्हणजे काय बेटा? 3n लिखा है मैंने। व्हाट डज दैट 3n मीन? ओमकार, 3 न्यूक्लियस? नो, यू डू नॉट कॉल इट एज 3 न्यूक्लियस। पूरा सेल डिवीजन चैप्टर होगा, अपने को डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड का मतलब नहीं पता है। वीर अपना राज, they will have 3 sets of chromosome। एक मम्मी के पास से आता है हमारे बॉडी में, एक पप्पा के पास से आता है, 2 सेट हो गया तो हम डिप्लॉइड हो गए। इसके पास तीसरा एक और आ जाता है तो ट्रिप्लॉइड कहते हैं। they will have triploid meaning they have 3 sets of chromosomes। यानी किसी एक प्लांट के अंदर अगर मिनिमम 8 क्रोमोसोम मिलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन में, तो डिप्लॉइड में 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी में उसके पास जितने भी सेल्स है सब में 16 क्रोमोसोम्स होंगे।
गैमेट्स में उसके पास 8 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन उसके टेप्टम के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 plus 8, that brings up to 24 chromosomes it will have. Are we clear? Yes or no? Sorted है बेटा? Yes. So that's how basically you have walls of anther that is oriented. Coming a little bit more inside, ये पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर, मतलब सॉरी, टेप्टम के अंदर क्या होता है? ये पोलन सैक हो गया। पोलन सैक के अंदर कुछ ऐसे ऐसे सेल्स रहेंगे। इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजिनस cells, which we've written over here. This sporogenous cells will undergo cell division by the process of mitosis. माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन हो जाएगा बेटा, और सेल डिवीजन होके अपने को एक सेल्स, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स में जिसे कहते हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहेगा, इट विल अंडरगो मेयोसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड pollen grains. This process of production of 4 haploid pollen grains is called as microsporogenesis. काय म्हणतात? We call it as microsporogenesis. Microsporo mean microspore, genesis मतलब बनाना. So microspore बनाने वाले प्रोसेस को कहेंगे microsporogenesis. Are we clear? Everyone? Any doubts? तो इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होगा? When we talk about pollen grains, यहां तक पहले पूरा क्लियर है? Once again और understood? नक्की सबको? चलो, when we talk about pollen grains बेटा, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, उसकी क्या खासियत हो जाती है? तो पहले तो पोलन ग्रेन्स के पास 2 वॉल्स होता है, एक अंदर का स्मूथ वॉल रहेगा और एक बाहर का गंदा सा वॉल रहेगा, रफ। कुछ ऐसा। Can we see this? It will have inner smooth wall and outside rough wall. The outer rough wall that it is seeing is called as exine. काय म्हणतात? Exine. आणि inner wall that we see is called as intine. क्या बोलेंगे? This is exine and this is intine. Together we call it as sporoderm. Together दिखेगा? Together we call it to be as sporoderm. Sporo मतलब माइक्रोस्पोर के लिए स्पोरो यूज किया है, और डर्म यानी लेयर, so you call it as sporoderm. Are we clear बेटा? जो एक्साइन होता है, it is very hard, rough and non-destructible. ये काफी हार्ड, रफ और नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है बेटा, and it is synthesized by a chemical which is called as sporopolanin. It is synthesized by a chemical called as sporopolanin. इस कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं नीट में अलग अलग घुमा के। स्पोरोपोलानिन एक ऐसा केमिकल है बेटा जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते। इट इज highly indestructible chemical which is seen around the pollen grains. ठीक है, outermost wall of pollen grain is composed of a chemical called as sporopolanin. दिमाग में गांठ बांध के रखना ये चीज by default, ठीक है। अब ये जब मैं बोल रहा कि नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब क्या होगा कि अगर मैं ऐसा स्पोर्स पोलन ग्रेन नीचे गिरा, मैंने ऐसा उसके अंदर पत्थर मारा और पत्थर से ऐसा चूरा किया, तो क्या वो टूटेगा नहीं क्या सर? वो टूटेगा,
नॉन डिस्ट्रक्टिबल यानी कि वो केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते, समझ पा रहे? इसको मैंने अगर तोड़ा ना तो ये प्लास्टिक टूट गया, पेन टूट गया, बट प्लास्टिक में यू हैव, और इफ इट इज इथिलीन, लेट्स फॉर एग्जांपल इफ इट इज इथिलीन, दैट इथिलीन बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। समझ पा रहे हम या नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे? अगर सेल वॉल रहेगा तो वो सेल्यूलोज 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 से बनेगा ना, तो बहुत सारे सेल्यूलोज को मैंने तोड़ दिया, बट the multiple cellulose are detached from each other. That is possible, but breaking down cellulose is not possible. Understood? So there are multiple sporopolanin which can be separated by breaking the exine wall, but then separating those sporopolanin के bonds या breaking down sporopolanin के bonds is not possible. Are we clear? कोई भी enzymatic activity कुछ भी उसको तोड़ नहीं सकता बेटा, जिस वजह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो फॉसिल फॉर्म में भी सलामत मिलते हैं अपने को। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? फॉसिल फॉर्म में भी, जैसे हमारा फॉसिल जो रहता है उसमें अपने को हड्डी दिखता है ना खाली, बिकॉज हड्डी को तोड़ना डिफिकल्ट है। स्किन विन तो क्या फट से डिग्रेड हो जाता है, 10-15 दिन लगा स्किन डिग्रेड, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा अपने को, खाली हड्डियां दिखेगी अपनी, अगर गाड़ दिया हमको तो। वो हड्डी को डिग्रेड होने को बहुत टाइम लगता है, समझ पा रहे? So haddi will be present within the earth's crust as fossil for us, and we can study them. Likewise, when we talk about plants, there are pollen grains which act as fossils. Why are pollen grains capable of forming a fossil? Is because of the presence of sporopolanin in them. Are we clear? This is also one of the question that can be framed, that fossil form में pollen grains हमें क्यों मिलते हैं? तो फॉसिल फॉर्म्स में हमें पोलन ग्रेन्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलानिन। आर वी क्लियर? चले आगे बेटा। इसके अलावा जो एक्साइन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। देखो बीच बीच में गैप है, दिख रहा है? बीच बीच में छेद बन चुके हैं, इन छेद को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या म्हणतात? पोरे नहीं है, जर्म पोर है, ठीक है ना? इट इज नथिंग बट जर्म पोर। जर्म पोर से क्या मतलब होगा अपना सर? जर्म पोर यानी कि यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। अब पोलन ट्यूब तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं अपने लिए, ठीक है? पोलन ट्यूब जो है वो इन्हीं छेदों में से बाहर निकलता है, ठीक है? अब पोलन ट्यूब अगर इन छेद में से बाहर निकल रहा है यानी कि इनर वॉल जो है दैट विल गेट एक्सटेंडेड ना, है ना? कैसे एक्सटेंड होगा वो हम देखेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं उसके लिए। पहले पढ़ लेते कि इंटाइन की क्या खासियत है। जो इंटाइन होता है इट इज अ स्मूथ वॉल, रफ नहीं है, स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। इसके अलावा इट इज फ्लेक्सिबल, रिजिड या हार्ड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकते हैं उसको हम लोग। ये किस केमिकल से बनता है? सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, जिसको काफी बार कंबाइन करके कंफ्यूज करते हैं पेक्टोसेल्यूलोज बोल के। सो जो इंटाइन वॉल होता है बेटा पोलन ग्रेन्स का, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, दैट इज नथिंग बट पेक्टोसेल्यूलोज। आर वी क्लियर? यही इंटाइन वॉल जब पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होना होगा तब देयर इज एंडोस्मोसिस दैट अकर्स। उस एंडोस्मोसिस के समय पे यही इंटाइन वॉल इन छेदों में से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे इन छेद में से बाहर निकलता है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज व्हाट यू कॉल इट एज पोलन ट्यूब्स। आर वी क्लियर? तो एक और क्वेश्चन 2016 में या 17 में पूछा गया था, दैट the walls of pollen grain is formed by dash, the walls of pollen tube is formed by dash। क्या लिखेंगे? हाँ, पेक्टोसेल्यूलोज becomes the answer, ठीक है? इंटाइन वॉल ही एक्सटेंड होकर पोलन ट्यूब बन रहा है ना, तो इंटाइन वॉल जिस केमिकल से बनता है पोलन ट्यूब भी उसी केमिकल से बना है।
समझ पा रहे? कौन से केमिकल से? कौन सा केमिकल? आसान हो गया। चले आगे। इसके अलावा ऑब्वियसली इसके पास सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। अब ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? छी छी छी, डूब मरो। 12वीं में आ गए तुम, अभी तक तुमको हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं पता है। पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड? बोर्ड पे देख के कॉपी करके आंसर बता दो, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हाँ, पक्का? कौन से सेल में से पोलन ग्रेन बना? दक्ष, कौन से सेल में से पोलन ग्रेन बना? देखना उधर, बोर्ड के आगे कर रहा है। हर्ष वर्धन, बताओ जरा, कौन से सेल से बना पोलन ग्रेन? पोलन, दीदी इससे पढ़ाओ क्या करके। गौरव बताओ। अरे यार समझ नहीं रहा है? हाँ, नहीं समझा? पोलन ग्रेन कौन से सेल से बना? तो क्या नशे में बैठे तुम लोग? इट इज फॉर्म बाय which divide by meiosis to give us haploid cells which are nothing but pollen grains. ठीक है, इसके अलावा pollen grains is rich in protein plus vitamins. It is rich in protein plus vitamin. कौन सा विटामिन स्पेसिफिकली? इट इज रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी B1, B2, B3, B4 वैसा, जिस वजह से यू हैव एडिबल पोलन ग्रेन्स ऑल्सो, यानी पोलन ग्रेन्स को तुम खा भी सकते हो। ठीक है, ऐसी मिला और खा लिया सर, प्रोसेस किया हुआ रहता है पोलन ग्रेन। ठीक है, जैसे प्रोटीन शेक होता है, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़े थे किंगडम प्लांटे में, हम याद आ रहा है? किंगडम प्लांटे, सिंगल सेल प्रोटीन, स्पेस ट्रैवलर का फेवरेट फूड, यस और नो? हाँ, बस सेम टू सेम पोलन ग्रेन के साथ होता है। ठीक है, सेम। ये भी रिच इन प्रोटीन होता है, इट इज रिच इन विटामिन, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होगा इसके अंदर, और बहुत ही कम या नो नेग्लिजिबल अमाउंट में लिपिड्स होता है, जिस वजह से इट इज वेरी हेल्दी। इस वजह से इसका हम क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके पाउडर करेंगे, पाउडर करके उसको प्रोटीन शेक बना के पी सकते हैं, या प्रोटीन का गोली भी दे सकते हैं। ठीक है, बेस्ट पार्ट इज इसको हम काफी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिम ट्रेनर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एथलीट्स इसका इस्तेमाल कर सकता है, प्लस जो घोड़ा रेस में भागता है उसको भी ये पोलन ग्रेन का प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, काफी सारे जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? एनी डाउट्स? However, इसके अलावा there is also something like pollen allergy which occurs. What is that pollen allergy? थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो, when we talk about pollen grains बेटा, ये पोलन ग्रेन्स आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, और मैच्योर होने के पहले उसके बेसिक्स थोड़े पढ़ लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, they can also cause something called as pollen allergy. अब पोलन एलर्जी में क्या होता है, इसके बारे में ना बेसिक्स हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में, कि पोलन ग्रेन्स काफी बार हमारे ट्रकियल रीजन में आके फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो यू हैव समथिंग लाइक IgE. रिमेंबर वी सेड दिस, you have IgE which is antibody E, that is immunoglobulin E, जिसका क्वांटिटी राइज हो जाता है जब पोलन ग्रेन्स अंदर आता है। लेकिन ये सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। क्या होता है कि अगर सपोज मुग्धा हैज एन एलर्जी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और सपोज कोई वहां से अंदर एंटर कर रहा है फूल लेके, ठीक है, कोई भी फूल रहेगा वो, अगर वो फूल लेके एंटर कर रहा है बाहर से अंदर, तो दोस पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट वेट, तो वो हवा में पसर जाएगा एकदम से,
और जैसे ही वो इनहेल करेगी इसको, immediately that pollen grains will get stuck in her bronchi and it causes an inflammatory reaction, which is nothing but allergic reaction. How? By increasing IgE level, and ultimately it causes something called as bronchitis, which will lead to something called as asthma. नाम तो सुना होगा, दमे का बीमारी. This is one of the way how allergic reaction can be caused, where an individual can be suffering from asthma because of pollen allergy. Does this pollen allergy occur to everyone? No, it does not occur to everyone. ठीक है, कुछ कुछ इंसान होते हैं जो पोलन ग्रेन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ उनके अंदर पोलन एलर्जी होता है, सब में नहीं. ठीक है, यानी वो पोलन ग्रेन से सिर्फ मुग्धा, सिंस हर जीन्स आर वेरी वीक and are responsible for producing hyper IgE on entry of any foreign particles like pollen grains, is the reason that her body will react against it. ठीक है, बाजू में बैठी हुई नंदिनी को कुछ नहीं होगा. ठीक है, because the body is normal and her body will immediately reflect or reject this particular pollen grain and without causing any kind of allergic reaction inside the body. ठीक है, ये काफी स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, सबको नहीं होता ये चीज. पोलन एलर्जी के लिए कुछ स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स होते थे पहले. ठीक है, विच जो थे पार्थिनियम ग्रास, दैट इज कैरेट ग्रास में से आए हुए. कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले, जब हमने गेहूं इंपोर्ट किया था फॉरेन कंट्रीज में से, तो वो गेहूं को इंपोर्ट करने के साथ साथ ये जो पार्थिनियम या कैरेट ग्रास नाम का प्लांट था ना, उसके पोलन ग्रेन्स भी उसके साथ साथ इंपोर्ट हो गए थे, और ये एक्चुअली काफी एलर्जिक होते थे. अब ये जैसे इंडिया में आए, ये दूसरे दूसरे प्लांट्स के साथ कांटेक्ट में आए और उनके साथ पॉलिनेट हो गए, जिस वजह से आज काफी सारे प्लांट के पोलन ग्रेन्स अब एलर्जिक रिएक्शंस भी दे रहे हैं, नॉट जस्ट पार्थिनियम ग्रास के. ठीक है बेटा. However, as said that this pollen allergy is not for all, it is for few individuals only. इसके साथ साथ दो कॉन्सेप्ट अपने को और देखने हैं. वन इज कॉल्ड एज पोलन किट, एंड अदर इज कॉल्ड एज पोलन रॉबरी. पोलन किट क्या होता है? जब मधुमक्खी मधु लेने के लिए फ्लावर्स पे आती है, whenever a honeybee is coming to a flower for collecting nectars, some of the flowers have an excessive layer on the pollen grains. Apart from exine, they will have one more sticky layer on them. Why is that so? So that whenever that particular honeybee comes and tries to collect nectar, this pollen grains can get stuck on its body very easily. This excessive layer which is there on pollen grains, which helps them to get pollinated, is called as pollen kit. Are we clear? What is pollen robbery then? हनी बीज को पता होता है कि पोलन ग्रेन इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट. काफी बारी हनी बीज जो होते हैं वो इन पोलन ग्रेन्स जब नेक्टर कलेक्ट करते हैं ना, तो उसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स को भी कलेक्ट करते हैं. उनके एब्डोमेन, पेट के रीजन पे और लेग्स के रीजन में ना कुछ छोटे छोटे पाउच होते हैं, तो वो इन पोलन ग्रेन्स को लेते हैं और उस पाउच में डाल देते हैं, और फिर उड़ के उतने उसके घर पे चले जाते हैं. और जब वो मधु बनाते हैं, मतलब जब नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं, तब इस पोलन ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं. Now, depending on which pollen grain that they collected first, second, which honeybee has collected, depending on these two factors, we decide which honey will be of better quality. Do we understand? तो आंसर गया. हनी अलग अलग क्वालिटी का आता है बाहर मार्केट में, तो कौन सा हनी बेस्ट क्वालिटी का होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो पहले तो वो हनी बी कौन सा है जिसमें से ये हनी मिला है वो देखते हैं. दूसरा, वो हनी बी ने कौन से पोलन ग्रेन को इस्तेमाल किया था उस हनी को बनाने में. These two things decide what quality of honey will it produce. Are we clear or not? So pollen robbery is clear and pollen kit is clear. You also have something as pollen viability. There is something called as pollen viability. Viable यानी क्या बेटा? Viable यानी कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर सीड
या कोई सेल्स या कोई स्पोर्स जर्मिनेट हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उससे हम कहेंगे वायबल। वायबल बेसिकली मीनिंग होता है जिंदा, ठीक है। तो काफी बार ऐसा हमने देखा होगा कि सीड्स जो रहते हैं वो काफी पुराने रहेंगे, लेकिन फिर भी जब इसको सॉइल में डालते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है, यानी सीड्स आर स्टिल वायबल, सीड्स जो है वो अभी भी जिंदा है। लाइकवाइज देखो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में हमको पता होगा कि स्पर्म सेल्स या एग सेल्स कुछ समय तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो कितने समय तक वो जिंदा रहता है इज व्हाट इज द क्वेश्चन, वो हमें पता होना चाहिए। लाइकवाइज प्लांट्स में भी जब पोलन ग्रेन्स एंथर से निकल जाता है और स्टिग्मा पे पहुंचता है, कितने समय तक वो स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए, कि अगर इतने समय तक वो स्टिग्मा तक पहुंच गया मतलब वो जर्मिनेट हो जाएगा, अगर इसके बाद वो पहुंचा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ये हमको पता होना चाहिए। आवे क्लियर बेटा? तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे यू हैव व्हीट एंड राइस, इनके पोलन ग्रेन्स का जो वाइबिलिटी रहता है वो होता है 30 मिनट्स, यानी जब वो एंथर से बाहर निकलते हैं ना पोलन ग्रेन्स, तो ये एंथर 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा को चिपक ही जाने चाहिए। एंथनी सॉरी पोलन ग्रेन्स 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा को चिपक ही जाने चाहिए। अगर 30 मिनट के अंदर वो स्टिग्मा को नहीं चिपके, उसके बाद चिपके, तो वो पोलन ग्रेन जो वो मर चुका रहता है, अब वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। समझे क्या नहीं समझे? आयो समझ रहे नहीं समझ रहे? पक्का? चले आगे बेटा। वैसे ही कुछ और प्लांट्स भी है, जैसे you have plants that belong to Liliaceae family. We are aware about this family. Plants that belong to Fabaceae family, chana watana wala family. We are aware about this also. Plant that belongs to Rosaceae या Rosaceae family. नाम से पता चलता है क्या होगा ये? रोज फैमिली। इन तीनों प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, they can remain viable for few months. कुछ महीने तक उसके पोलन ग्रेन्स वाइबल रहते हैं, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल गया, उसके बाद कुछ महीने तक उसके पास टाइम है कि वो स्टिग्मा पे चिपके। इस वजह से इन प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो काफी क्विक और ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज द पोलन ग्रेन्स आर मोर वायबल। जबकि इन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी कम होता है, इसलिए इसके ग्रोथ को या इसके कल्टीवेशन को बहुत ध्यान से अपने को देखना पड़ता है। आर वी क्लियर? एनी डाउट्स? चिटर पिटर छोटा छोटा टॉपिक्स है ये जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अपने को कोने कोपरे में, ठीक है। जनरली ये हमसे निग्लेक्ट हो जाते हैं, बट देन माइंड यू इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं नीट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। छोटे छोटे इजी टॉपिक्स है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पोलन एलर्जी। किसके पास से पोलन एलर्जी आया? फ्रॉम द पार्थिनियम ग्रास। पार्थिनियम ग्रास हमारे इंडिया में कैसे आया? बाय इंपोर्ट ऑफ व्हीट। व्हीट के इंपोर्ट से आया, लिखा नहीं है। व्हीट के इंपोर्ट से आया। जब पोलन एलर्जी होता है तब हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा हो सकता है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा सेम या अलग अलग? ऐसे सेम होता है। ब्रोंकाइटिस इज मोर साइंटिफिक टर्म, बट ब्रोंकाइटिस कैन बी ट्रीटेड। अस्थमा का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट अस्थमा को साइंटिफिकली ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। पोलन एलर्जी सबको होता है क्या? नहीं, किसी किसी को ही होता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन के आसपास यू कैन हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लेयर आल्सो फॉर बेटर पॉलिनेशन, टू व्हाट यू कॉल इट एज पोलन किट, ठीक है। एंड देयर आर सम हनी बीज व्हिच टेंड्स टू रॉब दिस पोलन ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट, दे डू नॉट हेल्प देम इन पॉलिनेशन। इसलिए इसको पोलन रॉबरी कहा जाता है, कि वो ले तो लेता है लेकिन दूसरे स्टिग्मा पे चिपकाता ही नहीं, वो खुद लेके जाता है घर पे, इससे उसको कहते हैं पोलन रॉबरी, ठीक है बेटा। एंड देन वी स्पोक अबाउट पोलन वायबिलिटी, कि हर एक पोलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद कुछ समय के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। Concept short? Everyone? Yes. Any doubts? Can I go ahead? हम एक और टॉपिक करते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप, ठीक है। वेर वी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ये पोलन ग्रेन्स जो है वो मेच्योर होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स खाली बने बेटा, दे डिड नॉट गेट मेच्योर। तो सर मेच्योर कब बोलेंगे उसको? आधा घंटा है और चलेगा। मेच्योर कब बोलेंगे उसको? मेच्योर तब बोलेंगे जब वो गैमीट बनाता है बेटा। तो जब वो गैमिट बनाता है तब हम उसको मैच्योर बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन गैमिट नहीं है क्या सर? नहीं,
लेकिन बचपन से तो हम यही सुने थे सर कि पोलन ग्रेन इज अ गैमेट. फॉल्स. Pollen grains are not gamete. Rather, pollen grains are called as gametophyte. काय म्हणतात बेटा? Gametophyte. अच्छा, ये टर्म हम पहले भी सुने हैं, नया नया तो है नहीं. गैमेटोफाइट मतलब क्या? ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोड्यूस करता है या जिसके अंदर गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, उससे हम कहते हैं गैमेटोफाइट. यानी कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पार्शियली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. आर वी क्लियर? पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एज पार्शियली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. ठीक है. कौन सा गैमेटोफाइट होगा ये? माइक्रोस्पोरोगैमेटोफाइट या फिर मेगास्पोरोगैमेटोफाइट? You can call it as microsporogämetophyte या microgämetophytes also. ठीक है. अब ये मैच्योर कैसे होता है? इसका मैच्योरेशन 2 स्टेज में होता है बेटा. पहला पॉलिनेशन के पहले, दूसरा पॉलिनेशन के बाद. पॉलिनेशन के पहले क्या होता है? पॉलिनेशन के पहले यानी कहां पे होना चाहिए? पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन होने के बाद आधा मैच्योर होगा और आधा पॉलिनेशन के पहले होता है. पॉलिनेशन के पहले पोलन ग्रेन्स कहां पे होंगे? तो फर्स्ट स्टेप उसका कहां पे हो रहा है? सो यू हैव फर्स्ट स्टेप विच इज बिफोर पॉलिनेशन बेटा, विच इज अकरिंग विद इन व्हाट? एंथर्स. ठीक है. क्या होता है सुनो, काफी आसान है ये चीज. ये एंथर हो गया अपना, ऊपर का एक जाइन नहीं बना रहा हूं, सॉरी ये पोलन ग्रेन हो गया अपना, ऊपर का एक जाइन नहीं बना रहा हूं मैं. इस पोलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस माइटोसिस करके डिवाइड हो जाता है. कहां पे होगा ये डिवीजन? कहां पे हो रहा है? एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनाता है. एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है और एक छोटा न्यूक्लियस बनता है. और सेल वॉल जो है वो एक ही के अंदर बनता है, यानी दिस इज कॉल्ड एज एंडोमाइटोसिस. जनरली क्या होता है कि एक सेल है, डिवाइड होता है और 2 सेल बनता है. यहां पे भी एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल ही बना, लेकिन एक बड़ा सेल था, एक छोटा सेल था. छोटा सेल बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में ही दिख रहा है ना अपने को, बाहर नहीं निकलता, इसे हम कहेंगे एंडोमाइटोसिस. ठीक है. बड़े सेल का क्या नाम हो जाएगा? बड़े सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल. क्या म्हणणार? वेजिटेटिव सेल. और छोटे सेल जो यहां पे दिख रहा है अपने को, दिस इज कॉल्ड एज germinative cell. We call it as germinative cells. Are we clear? Yes or no? Yes. Germinative cells, vegetative cell. Germinative cell floats inside the vegetative cell. Germinative cell is found within the cytoplasm of vegetative cell. Germinative cell yani it will give rise to germs, that is nothing but gametes. Vegetative cell will provide vegetables. Vegetables are edible, so it will provide nourishment to these cells. Are we clear? Yes or no? Yes. समझे यहां तक? ये दोनों का क्या डिफरेंसेस होगा? वेजिटेटिव सेल जो होता है, इट हैज लार्ज न्यूक्लियस, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म. अब बता दो डेंस साइटोप्लाज्म में मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारा खाना बन रहा है. खाना बहुत सारा क्यों बन रहा है? बिकॉज उसको इससे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये निठल्ला वो बोलता है मैं जन्म दे रहा है ना, मैं कुछ काम नहीं करेगा. ठीक है. ये बोलता है ठीक है चल मैं ही तेरे को खिला देता. ये खुद खाना भी बनाता है और उसको खिलाता भी है, और वो स्टोर भी करेगा. सो इट विल हैव लार्ज वैक्यूल फॉर फूड स्टोरेज. दिस विल प्रोवाइड nourishment to germinative cell. GC germinative cell. GC germinative cell. याद रह जाएगा. तुम GC मत लिखना बेटा, हमारा उतना अक्ल नहीं कि हमको याद रहेगा लेटर तक. तुम पूरा लिखना. germinative cell को नरिशमेंट देता है. इसके अलावा वेजिटेटिव सेल जो होता है, इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब.
इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। तो जर्मिनेटिव सेल का क्या फायदा? सब कुछ तो ये कर रहा है, इसका एक ही फायदा है, ये गैमेट बना के रहेगा बस, और कुछ नहीं। सो इसके पास होगा स्मॉल न्यूक्लियस कंपैरेटिवली। एनसीईआरटी का खासियत क्या पता है? ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है नीट में एक बारी। खासियत है कि कहीं पे भी एनसीईआरटी में बताने की किसका लार्ज न्यूक्लियस है किसका स्मॉल, वो अज्यूम करे कि तुम डायग्राम देखो और खुद समझ जाओ किसका लार्ज न्यूक्लियस है किसका स्मॉल। डायग्राम में ही दिखाया हुआ है कि एक का न्यूक्लियस बड़ा है एक का न्यूक्लियस छोटा है, तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था ये चीज, और अचानक से आ गया तो बच्चे शॉक, बोलते ऐसा तो कुछ है नहीं एनसीईआरटी में जो रट के गए थे वो। बट किसी ने ना डायग्राम देखा ही नहीं था, और इस वजह से हम प्रोफेसर्स बोल बोल के थक जाते कि भाई डायग्राम देखो, समझो क्या बोले डायग्राम, एंड देन यू गो फॉर सॉल्विंग पेपर्स। ठीक है, तो डायग्राम में दिया हुआ है इसका बड़ा न्यूक्लियस इसका छोटा न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस के साथ साथ इसका साइटोप्लाज्म डेंस था, इसका थिन हो जाएगा। क्यों थिन हो जाएगा? बिकॉज ये बेचारा खाना नहीं बनाता ना, तो इसके पास वैक्यूल का भी कोई जरूरत नहीं है, कोई वैक्यूल नहीं होगा, नरिशमेंट तो वो इसके पास से ले ही रहा है, तो उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। इसके अलावा दिस फॉर्म्स पोलन ट्यूब, तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स मेल गैमीट्स, इट विल फॉर्म मेल गैमीट्स। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर? वंस मोर और अंडरस्टूड? पक्का? रिपीट करूं? चलो सेकेंड स्टेप पे चले। Second step will be after pollination. Pollination के बाद हो रहा है, यानी ये कहां पे हो रहा है बेटा? This will occur in, rather this will occur on stigma, not in, on stigma. अब क्या होता है? इतना पोलन ग्रेन बन गया, कितने न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन के पास इस वक्त? ओरिजिनली पैदा हुआ तब कितने थे? अब कितना हुआ? ऑलमोस्ट 60% प्लांट्स जो होते हैं वो इसी प्रकार दो दो न्यूक्लियस लेके पॉलिनेट होते हैं, मतलब 60% प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वैसे दो दो न्यूक्लियस के साथ पॉलिनेट होते हैं। तो बचा हुआ 40%, रुको जरा सब्र करो बताता हूं। याद है? क्लियर? अब आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? पहुंच गया वो स्टिग्मा पे, ये हमने बना दिया स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के ऊपर आ गया हमारा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के आसपास यू हैव समवॉट लाइक दिस, ठीक है। जर्म पोर्स रहेंगे, ये मैं बताना भूल गया तुमको कि जर्म पोर कितने हैं उसके ऊपर भी पोलन ग्रेन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो पोलन ग्रेन्स कैन बी यूनिपोरेट, यानी एक ही जर्म पोर है उसके पास, दे कैन बी बाइपोरेट, यानी दो जर्म पोर है, दे कैन बी ट्राइपोरेट एंड टेट्रापोरेट, यानी 3 और 4 जर्म पोर्स रहेंगे उसके पास। समझ पा रहे? मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर ईदर बाइपोरेट और ट्राइपोरेट, रेयरली देयर विल बी यूनिपोरेट एंड टेट्रापोरेट। जिम्नोस्पर्म्स के सारे पोलन ग्रेन्स हमेशा यूनिपोरेट ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के सारे पोलन ग्रेन्स हमेशा यूनिपोरेट ही होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे? बाई या फिर टेट्रा, और यूनि काफी कम होते बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो पोलन ग्रेन छुड़ के बैठ गया स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा ना किसी भी पोलन ग्रेन को नहीं रिसीव कर लेता, वो पहले जांच पड़ताल करता है कि हाँ तू मेरे खानदान से बिलोंग करता है क्या, तू मेरे खानदान से बिलोंग करता है तो ही तू पोलन ट्यूब बना सकता है, वरना नहीं बना पाएगा। तो पहले पोलन ट्यूब उड़ के आ गया, आके पोलन ट्यूब बोल रहा हूँ, पोलन ग्रेन इधर से उड़ के आ गया, इधर से उड़ के आने के बाद वो स्टिग्मा पे चिपक गया। कितने न्यूक्लियस थे बेटा? तो ये बना दिया हमने 2 न्यूक्लियस इसके अंदर, एक बड़ा एक छोटा। अब ये पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस वापस रिपीट होने वाला है तब मैं नहीं बताऊंगा। अब ये पोलन ग्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल को ये स्टिग्मा सेंस कर लेता है,
और सेंस करके बोलते कि हाँ हाँ मेरे खानदान का। जैसे ही पता चलता है मेरे खानदान का, वो उसको चाय पानी देता है, मीनिंग इट प्रोवाइड्स शुगरी वाटर। इट विल प्रोवाइड शुगरी वाटर, ठीक है, यानी चाशनी वाला पानी, नेक्टर जैसा ही कुछ होता है बेटा। जैसे ही वो चाशनी वाला पानी देता है, पोलन ग्रेन फटाफट पानी पी लेता है। पानी पिएगा तो एंडोस्मोसिस होगा ना। एंडोस्मोसिस होने की वजह से 3 में से या जितने भी पोर्स है उनमें से एक पोर जो स्टिग्मा के बहुत करीब है, वहां से इंटाइन वॉल जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को। इंटाइन वॉल एक्सटेंड हो जाता है और बनाता है पोलन ट्यूब। एक और बारी, पोलन ग्रेन उड़ गया एंथर से, स्टिग्मा पे जाके पहुंच गया। पोलन ग्रेन ने कुछ केमिकल सीक्रेट किया जो स्टिग्मा ने सेंस किया। सेंस करने के बाद उसको प्रोवाइड किया शुगरी वाटर, जिसको इस पोलन ग्रेन ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके एंडोस्मोसिस हो गया, जिस वजह से यू हैव पोलन ट्यूब which is formed, right? Now this pollen tube which is formed, that will go on getting extended further. जैसे जैसे वो एक्सटेंड होते जा रहा है, जो वेजिटेटिव सेल था जो पोलन ट्यूब बना रहा है, उस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इस पोलन ट्यूब के अंदर जाता है। सो यहां पे यू विल हैव साइटोप्लाज्म प्लस उसका न्यूक्लियस। समझ पा रहे? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों पोलन ट्यूब के टिप पे आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो खाना रहेगा ना, वो खाने का इस्तेमाल करते हुए ये पोलन ट्यूब जो है वो लंबा लंबा एक्सटेंड होते जाता है। तो ये आ गया साइटोप्लाज्म और यहाँ पे आ गया उसका न्यूक्लियस। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बेटा? चले आगे। अब जैसे ये आगे जाता है ना, जर्मिनेटिव सेल बोलता है कि मैं तो अकेला रह गया, मेरे को तो खाना भी नहीं दे रहा है कोई, मैं भी आएगा। तो वेजिटेटिव सेल बोलते हैं कि ये जो ट्यूब है ना वो बहुत पतला है बेटा, तू बहुत मोटा है, तो नहीं आ पाएगा। तो बोला नहीं मैं तो आएगा, मेरे बगैर तू क्या करेगा उधर जाके। तो बोलता है लेकिन तू आ ही नहीं पाएगा। तो बोलता है ठीक है मैं अपने आप को तोड़ दूंगा और तोड़ के आऊंगा। तो ये सेल जो वो टूट जाता है और टूट के 2 न्यूक्लियस बना देता है। वो ये दोनों क्या हो गए? मेल गैमेट्स। So you have a gametophyte that is carrying gametes. So my male gametophyte is matured. बन गया मेरा मेल gametophyte। आसान। आगे का प्रोसेस अगले हफ्ते। याद है? क्लियर? एनी डाउट्स बेटा? वंस अगेन और अंडरस्टूड? अब हमारे एनसीईआरटी में ये पूरा प्रोसेस इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज ये सारा कॉन्सेप्ट will come again in fertilization process. I have explained you all in detail because if by chance statement based question आता है इस पे, तो अपने को डिटेल्स पता होनी चाहिए कि क्या कैसा है, बिकॉज काफी सारे इंफॉर्मेशंस मिसिंग है एनसीईआरटी में, तो जोड़ नहीं पाओगे तुम इंफॉर्मेशंस को या प्रोसेस को। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन। एनसीईआरटी ना पोलन ग्रेन्स के नीचे एक स्टेटमेंट दे रहा है, जो आधा मैंने बता दिया, आधा अभी पूरा कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट दिया जहां पे बोलता है कि जो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेट होते हैं ना, वो 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में पॉलिनेट होते हैं। 60% फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में पॉलिनेट होते हैं। सिर्फ 40% ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स 3 सेल स्टेज में भी पॉलिनेट होते हैं। अब बच्चों को समझता नहीं कि तीसरा सेल आया कहां से। एक तो जर्मिनेटिव था और दूसरा था वेजिटेटिव, ये तीसरा सेल कहां से आया सर? वो इसका बात कर रहा है बेटा। काफी फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे भी है जो पूरा डेवलपमेंट पहले ही कर देते हैं, एक ही स्टेज में खत्म कर देते हैं। एंथर के अंदर ही पहले एक माइटोसिस होता है जिससे जर्मिनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बना, फिर से माइटोसिस होता है जिसमें जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होकर तो मेल गैमेट बना देता है, और फिर वो पॉलिनेट होता है। ऐसे 40% प्लांट्स है। समझे क्या बोला मैं बेटा? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें 60% ऐसे प्लांट्स है जो हमने पढ़ा वैसे पॉलिनेट होके मेल गैमेट्स बनाता है, लेकिन 40% ऐसे भी है जिनमें मेल गैमेटोफाइट के मैच्योरेशन के लिए 2 स्टेज का जरूरत नहीं है। एंथर के अंदर ही तीनों सेल्स बन जाते हैं। तीनों सेल्स कौन से?
दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। समझे बेटा कि नहीं समझे? ओमकार क्लियर है? एनी डाउट्स अप टिल हियर? So for today we've understood about complete male reproductive system of plants. Next lecture, next week when we meet back again, we will discuss about female reproductive system. यहाँ तक clear है? Next lecture when we meet back again, I'm expecting you all to revise this entire concept and sit. Because ये chapter ideally boards as well as NEET दोनों के point of view से बहुत ही ज़्यादा important है। ठीक है? Boards के लिए important because this is the only major botanical chapter that we have. ठीक है? I hope you all will revise this and come for the next lecture. चलो घर जाने का